So hello my dear kids and welcome back to the super important session on plant growth and development. We are going to solve here the PYQs from the year 2021 up to the year 2010. Already ये chapter हम complete कर चुके हैं. Concept wise हमने एक एक concept detail में in depth we have studied it. So today we are only going to solve the PYQs, and if you have missed, if you have skipped any topic from this particular chapter, so I request you all to go and study that first and then come over here so that आप flawlessly बिल्कुल सारे PYQs सही solve कर पाएंगे. So without any delay, we will be beginning with today's very important session on plant growth and development. This particular chapter is actually from a very important chapter of plant physiology. Weightage wise अगर देखा जाए तो 1 से 2 questions आप expect कर सकते हो इससे. And plant physiology में जितने भी topics है, they are actually lengthy, but weightage उनका comparatively उतना high नहीं है. But still you have to go through them very nicely because टॉपिक्स थेरेटिकल है. जब थेरेटिकल टॉपिक्स होते हैं जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, विच हार्मोन इज यूज फॉर व्हाट. सो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं विच आर थेरेटिकल, और इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं. अगर आपको बात याद है तो आप डेफिनेटली सही आंसर उसका मार्क कर सकते हैं. सो दैट इज वाई इस तरह के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो विदाउट एनी डिले, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन in front of you from the year 2021, and the question is the site of perception of light in plants during photoperiodism is. photoperiodism के टाइम पर वो site of perception of light in plants during photoperiodism क्या होती है? shoot apex, stem, axillary bud या फिर leaf. I hope everyone remembers फोटोपीरियडिज्म में लाइट का परसेप्शन किस पार्ट से होता है. डायरेक्ट आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू आंसर दिस. एज आई कैन सी बच्चों के रिस्पॉन्सेज आने लग गए हैं यहाँ पर. येस, विद बिफोर यू आंसर दीज क्वेश्चंस, यू ऑल नो यू हैव टू टेक 10 seconds, मैक्सिमम 10 seconds आपको लगने हैं क्वेश्चंस के लिए. एंड आई वॉन्ट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन. सभी का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाना चाहिए. इफ सम किड्स आर कंफ्यूज्ड, इफ सम किड्स आर नॉट एबल टू आंसर दिस, प्लीज लेट मी नो. प्लीज रेज योर हैंड्स, गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट एटलीस्ट यू ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास. जितने भी बच्चे यहाँ पर है, everyone has to send me a thumbs up quickly so that I can at least get to know कि you all are present in the class. And as I can see, okay, so बहुत सारे बच्चे present हैं बिल्कुल. Okay. Yes, so now I want the answers from all of you. I want the response from maximum of you. So as we all know, perception of light की जब बात चलती है यहाँ पर, so perception of light in plants during photoperiodism किसकी वजह से होता है? As we already know, it is because of leaf only. leaf की वजह से ही तो perception of light होगा. So D has to be the correct statement here, correct option here. D हमारा सही आंसर है. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि फिर से 2021 से पूछा गया है. प्लांट हार्मोन जिसे वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है in a field, what is that? Very famous one. We have actually discussed this in the class as it is. IAA, NAA, 2,4-D या फिर IBA. These are the options in front of us, and let's see what all you have to answer for this question. वो plant hormone जिसको कि हम use करते हैं field में destroy करने के लिए, weeds को destroy करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? And as we already know, we call it as 2,4-D. ये तो बहुत ही ज़्यादा direct question हो गया, and as we can see here, मोस्टली सभी को याद थी ये बात. 2,4-D is the one. Now coming to the next question in front of us from the year 2020, and the question is the process of growth is maximum during लॉग फेज, लैग फेज, सेनिसेंस या फिर डॉर्मेंसी. इनमें से किस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, इनमें से किस में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम? किस फेज में मैक्सिमम ग्रोथ फेज होता है? लॉग फेज, लैग फेज, सेनिसेंस या फिर डॉर्मेंसी. एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट ग्राफ जिसके हमने अंदर ये सारी बातें की थी. एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
मैक्सिमम ग्रोथ पूछ रहे हैं आपसे, किस फेज में होगी? सो वी ऑल नो दैट मैक्सिमम ग्रोथ की अगर बात हो रही है यहाँ पर, सो मैक्सिमम ग्रोथ डेफिनेटली हैपेंस ड्यूरिंग योर लॉग फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है लॉग फेज के दौरान, राइट? लैग फेज के दौरान तो बहुत कम होती है। देन सेनीसेंस और डोमेंसी तो अलग ही टर्म्स है। सो मैक्सिमम प्रोसेस ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लॉग फेज, एज आई कैन सी हियर। मोस्टली बच्चों ने ए आंसर सेंड किया है, विच इज डेफिनेटली करेक्ट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, एंड द क्वेश्चन इज नेम the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the stem, thus increasing the yield of sugarcane crop. Very important question. This we had actually discussed in the class कि जब स्टेम हमें हाइट बढ़ानी होती है, इंटरनोड्स की जब लेंथ बढ़ानी होती है शुगर कैन में, तो हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? दिस वी हैव स्टडीड इन द क्लास इटसेल्फ। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल थियोरेटिकल, बिल्कुल डायरेक्ट है कि किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, कहाँ से रिलीज होता है, किस हार्मोन का क्या इफेक्ट है, या फिर फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये सारी टर्म्स के बारे में मेनली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही रहेंगे, इसमें कुछ भी एज सच ट्विस्ट नहीं होगा। सो नाउ इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि शुगर कैन क्रॉप के अंदर स्टेम की हाइट लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, सो व्हाट इज दैट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस को याद है यहाँ पर क्लास की बातें। यस डेफिनेटली। अब जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये क्वेश्चन तो सभी को याद होगा, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी मोस्टली आई गेट मिक्स्ड आंसर्स, तभी मोस्टली मिक्स्ड आंसर्स यहाँ पे रिसीव होते हैं। एंड एज आई कैन सी हियर, कुछ बच्चों ने कुछ अलग आंसर्स दिए, बट मोस्टली आंसर दैट आई हैव रिसीव्ड हियर इज सेम, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज दैट हार्मोन जिसे हम यूज करते हैं शुगर कैन स्टेम की लेंथ इंक्रीज करने में। सो बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर, बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2020, 2020 का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। द क्वेश्चन इज which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? इनमें से कौन सा inhibitory substance नहीं है governing seed dormancy? Okay, which is not inhibitory. Options are gibberellic acid, abscisic acid, phenolic acid या फिर para ascorbic acid. And now this is also a direct question from your seed dormancy. Seed dormancy से direct question है, NCERT में ये बात दे रखी है लास्ट पे। They have actually given these things in the NCERT itself. सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। seed dormancy की अगर बात हो रही है तो कौन इन्वॉल्व नहीं है? We all know कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि सीड डोमेंसी में नहीं लीड करता, विच इज मेनली अ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन हियर इज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन इज अ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन जिसका इफेक्ट सीड डोमेंसी पर नहीं होने वाला है। सो ए हैज टू बी द राइट आंसर ओवर हियर डेफिनेटली। वाइल आपका एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये सब तो सीड डोमेंसी को लीड करते हैं, सो ये सब गलत है। A is the right answer here. Then coming to next question. The question is, it takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? Again a direct question. ये भी हमने क्लास में पढ़ रखा है। शुगर कैन वाला एग्जाम्पल, पाइनएप्पल वाला एग्जाम्पल, ग्रेप्स वाला एग्जाम्पल, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, इथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन इन फ्रंट ऑफ अस एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर ओवर हियर। एज आई कैन सी, यस डेफिनेटली अगर बात हो रही है यहाँ पर पाइनएप्पल प्लांट्स की, सो कौन इनमें से कौन सा हार्मोन वी कैन यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर? सो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में एब्सिसिक एसिड हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। देन यहाँ पर जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, नो। देन यहाँ पर अगेन एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिन, सो दिस इज ऑल आर रॉन्ग आंसर्स। अगर हम पाइनएप्पल्स की बात करें, सो इट हैज टू बी ऑक्सिन एंड इथिलीन। वी एक्चुअली use oxin and ethylene over here, so B has to be the
correct answer. Then coming to next question, what is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? फिर से आपसे फोटो पीरियड के अब परसेप्शन ऑफ लाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा, इसके पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस दिए हैं लीव्स, फ्लावर्स, पल्विनस, लीव्स, लेटरल बड्स, पल्विनस या फिर शूट एपेक्स. सेम क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड हियर आल्सो एंड अगेन रिपीटेड है, तो सभी को याद है ये बात? एवरीवन रिमेंबर्स? लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. यस, सभी को, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है तो आप आंसर ही ना करो, यू हैव टू कीप सेंडिंग योर आंसर्स. यस, ऑफ कोर्स वी नो परसेप्शन का साइट इज leaves only, leaves ही perception of light करते हैं, so A has to be the correct answer here. Then coming to the next question in front of us from the year 2017 now. Question में पूछा है आपसे, fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of ethylene, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन. जो अर्ली स्टेज में फ्रूट ड्रॉप, लीफ ड्रॉप हो जाता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा हम हार्मोन यूज कर सकते हैं? एंड दिस इज अगेन बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन. अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है विच इज ट्विस्टेड, विच इज एक्चुअली इनडायरेक्ट. सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, कौन सा हार्मोन किसके लिए यूज होता है. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं अर्ली स्टेज पे, सो दैट हैज टू बी ऑक्सिन. ऑक्सिन यूज करेंगे हम इसके लिए, सो ऑक्सिन हैज टू बी द राइट आंसर हियर. जितने भी बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही जल्दी बी आंसर किया है, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट हियर. देन यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as roots? आप shoots और roots को secure करने के लिए इसमें से कौन से hormones का pair add करोगे? IAA जिब्रेलिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड या फिर जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड. You have to tell for shoot as well as roots here. And let's see what all you have to answer for this particular question. As we already know that जब बात आती है हमारे पास में अगर कोई ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर this has been given to you, so what has to be the right answer? Okay. So as I can see mixed answers आ रहे हैं. अब कुछ questions ऐसे होते हैं बच्चों जो कि आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही accurately answers कर देते हैं, but ऐसे questions जिसके अंदर इस टाइप का थोड़ा भी अगर मिक्स पूछ लिया आपसे, थोड़ा सा भी अगर स्टेटमेंट लेंदी हो जाता है, so why do you get confused in it? The question is actually quite easy only. उसको आप ध्यान से देखा करो और कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर घबराना नहीं है कि अरे इतना लेंदी क्वेश्चन. कई बच्चे जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है वहीं पर आधा तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर यू हैव स्टडीड. जितना भी आपने पढ़ाई करके गए हैं, दैट इज एक्चुअली इनफ. यू हैव prepared for 2 years, right? So you have to make sure that whatever you have studied, you just have to apply it there. और question में भले ही कोई बहुत ज़्यादा complicated term use कर ले, वो बहुत ज़्यादा complicated word ऐसा कुछ डाल दें जो कि आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, you have to just understand the gist of the question. आपको question का summary समझनी है and you have to just understand कि क्या पूछना चाह रहा है examiner. Okay. If in that manner you proceed, then definitely you will be able to answer. Otherwise you will be getting confused. So question जो है हमारे सामने, that is actually a direct question only. उसको आप ध्यान से पढ़ोगे. So सीधा सीधा आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपको रूट और शूट दोनों को की ग्रोथ करवानी है, so उसके लिए आप कौन सा हार्मोन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे. एंड दैट वी हैव एक्चुअली स्टडीड ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास में. लेट्स सी, कुछ बच्चे यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं. येस, आई कैन सी योर रिस्पॉन्स डेफिनेटली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन जनरल. मैं कुछ बच्चों की बात कर रही थी जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डेफिनेटली आई कैन सी हियर मोस्टली सारे ही बच्चों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है. मोस्टली बच्चों के आंसर्स यहाँ पर करेक्ट है. But I was talking about those kids who get confused. Okay, so we have studied this in class कि हमारे जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो रूट की ग्रोथ करवा सकते हैं, जो हमारे ऑक्सिन्स होते हैं वो शूट की ग्रोथ करवा सकते हैं. दिस वी हैव एक्चुअली स्टडीड इन द क्लास. नो, यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, भले ही आगे कुछ भी लिख के दे दें, वो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है उनका. सो हियर वी कैन सी ऑप्शंस में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इज गिवन इन बी ऑप्शन. दैट मीन्स शूट का ग्रोथ ऑक्सिन की वजह से, रूट का ग्रोथ साइटोकाइनिन की वजह से, दैट
That is correct here. So B has to be the right answer here. And as I can see, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल correctly answer दिया है. But those who got confused, for them I was telling that you don't have to get confused in such questions, क्योंकि questions यहाँ पर direct ही पूछे जा रहे हैं. ऐसा कोई भी question अभी तक नहीं हुआ है which is indirectly asked. कोई भी question अभी तक indirectly नहीं पूछा गया है. नो इस क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट नहीं कह सकते बेटा. वी कैन कॉल दिस क्वेश्चन एज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि कुछ अलग अलग टॉपिक से मिक्स करके या फिर लैंग्वेज ही बिल्कुल चेंज करके पूछा जाए. सो दिस वी कैन नॉट कंसीडर एज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. दिस इज एक्चुअली अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एंड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज द एविना कर्वेचर इज यूज फॉर बायो एसे ऑफ. ये तो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा है कि जब ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. सो एक्चुअल में एविना का जो कर्वेचर है उसको हमने किसके लिए यूज किया था, किसके बायो एसे के लिए वी हैड एक्चुअली यूज्ड, किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था. एंड देन उससे विच पर्टिकुलर हार्मोन वाज एक्सट्रैक्टेड आइसोलेटेड. एज आई कैन सी, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड. वेंट का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था एविना को लेकर. द कर्वेचर व्हाट डज इट शो, उससे हम किसका बायोएसे कर सकते हैं. वी कैन बायोएसे IAA. IAA was the thing that we had actually studied, right? Definitely correct. Indole 3-acetic acid. So A has to be right here. जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब ये फाइटोक्रोम क्या होता है, व्हाट इज फाइटोक्रोम. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. फ्लैवोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है या फिर क्रोमोप्रोटीन है. फाइटोक्रोम, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. सीधा सा क्वेश्चन है. वी ऑल नो फाइटोक्रोम इज अ व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन इज इट. फ्लेवो, ग्लाइको, लिपो या फिर क्रोमो. वी ऑल नो फाइटोक्रोम जो है वो एक क्रोमो प्रोटीन है. इट्स रिलेटेड टू कलर. क्रोमा वर्ड रिलेटेड है कलर से. सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. डी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर है. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now what you have to do is you have to study 4 statements A to D given below and select the 2 correct statements out of them. अब आपको इसमें से 2 करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं एंड यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं. Definition of biological species was given by Ernst Mayr. Photoperiod doesn't affect reproduction in plants. Binomial nomenclature system was given by R.H. Whittaker. In unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. And you have to select the 2 correct statements from here. Let's see what all you have to answer. So study of statements A to D. इसके थ्रू आपको 2 correct statements यहाँ पे बताने हैं. Alright, so as I can see here, already answers आ चुके हैं. Yes, definitely you can take 5 more seconds. 5 और seconds हैं and सभी से answers I am expecting. I want the answers from each and every one of you. Okay, so as we can see here, yes, definitely. अगर बात चल रही है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की, सो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर. क्या अर्नस्ट मायर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी? यस, दैट इज ट्रू. देन फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. क्या फोटो पीरियड का रिप्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है? वी हैव एक्चुअली स्टडीड फोटो पीरियडिज्म. उसके अंदर हमने देखा कि कैसे फोटो पीरियड फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है एंड वी ऑल नो फ्लावरिंग से ही तो रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है. सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट सही नहीं है. देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. क्या R.H. Whittaker ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था? No, we all know it was given by Carolus Linnaeus. Then in unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. हाँ बिल्कुल, अगर unicellular है तो growth और reproduction उसके लिए synonymous ही हो जाएगा. So A और D हमारे लिए सही statements हैं यहाँ पर and A and D is actually given in option number C. तो C answer जितने भी बच्चों का यहाँ पर आया है, C answer definitely that is true, that is definitely correct. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस राइट हियर. ऑक्सिन कैन बी बायोअसेड बाय. ऑक्सिन का बायोअसे किसके थ्रू हो सकता है? पोटोमीटर, लेटस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, एविना, कोलियोप्टाइल कर्वेचर या फिर हाइड्रोपोनिक्स. 2015 का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. एवरीवन कैन अग्री दैट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ रिपीटेड क्वेश्चन हियर.
अभी हमने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था। येस, दैट इज ट्रू, डेफिनेटली करेक्ट, बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, राइट। सो वी ऑल नो कि ऑक्सिन का बायो असे एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर से होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका उल्टा स्टेटमेंट था कि एविना के थ्रू किसका बायो से होता है। अब आपसे पूछ लिया ऑक्सिन का बायो से किसके थ्रू होता है, तो एक ही बात है, तो रिपीटेड है बिल्कुल क्वेश्चन। सो सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, GA3, इंडोल एसिटिक एसिड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से। स्ट्रेस हार्मोन, what which of the following is called as a stress hormone? 2014 का क्वेश्चन है आपके सामने। एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर। किस किस को ये बात बिल्कुल याद है? वी ऑल हैव स्टडीड दिस थिंग एक्चुअली, सो लेट अस सी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट मनन। येस, योर रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने आपका रीजन भी पढ़ लिया है। कुछ बच्चे तो एक्चुअल में अपने आंसर के साथ में रीजन भी सेंड कर देते हैं, एंड दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएबल। वो बच्चे जो रीजन भी पहले से बता देते हैं, दैट इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल, वेरी गुड। So as I can see the answers here, they are definitely mostly correct only। and हम सभी को पता है कि स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं, जैसे कि अगर वाटर की स्कैरसिटी है, ड्रॉट की कंडीशन है, ऐसी स्ट्रेस कंडीशन से कोप अप करने के लिए प्रिपेयर करता है। कैसे? स्टोमेटा क्लोज करवा के। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो द प्लांट वुड बी एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन। So that is why एब्सिसिक एसिड को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। So A has to be the right answer over here। A बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। Then coming to next question, जो कि 2013 से पूछा गया है। Question is, during seed germination its stored food is mobilized by। seed germination के टाइम पर जो stored food रहता है वो किससे मोबिलाइज होता है? ABA, जिब्रेलिन, इथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। Which of the following hormones does that? seed germination के टाइम पे 2013 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। and let us see what all you have to answer। जो फूड स्टोर्ड रहता है वो किसके थ्रू मोबिलाइज होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने एक्चुअल में पढ़ा है जब हमने हार्मोन्स और उनके फंक्शंस लिखे थे। सो वी हैड एक्चुअली लिस्टेड एवरीथिंग ओवर देयर। ओके, सो सीड जर्मिनेशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू आर आंसरिंग। Already I have received many answers and yes, definitely true। सभी को ये बात याद है that it was gibberellin। gibberellin के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी that it does this function and that's why B has to be the right statement here। Then coming to the next question from the year 2012। Question है, through their effects on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plant? टेम्परेचर और लाइट क्या कंट्रोल करते हैं? एपिकल डोमिनेंस, फ्लावरिंग, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा या फिर फ्रूट इलोंगेशन। टेम्परेचर और लाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, दैट यू हैव टू टेल हियर व्हाट डज दैट कंट्रोल, दैट यू हैव टू आंसर। एंड आई होप सभी को याद होंगी ये बातें। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, कोई भी ट्विस्ट क्वेश्चंस में अभी तक नहीं है, एज वी कैन सी हियर। यस और नो, एवरीवन कैन अग्री? क्वेश्चंस आसान है या फिर डिफिकल्ट है? इजी और डिफिकल्ट? टेल मी, इजी और डिफिकल्ट? यस, इजी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बिल्कुल सीधे। हमने अभी कुछ दिनों पहले ये सारी बातें पढ़ी है, सो सभी को याद होगा। टेम्परेचर और लाइट की जब बात होती है तो ये प्लांट के अंदर क्या कंट्रोल करते हैं? डेफिनेटली फ्लावरिंग। फोटो पीरियडिज्म का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। उसमें यही तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर और लाइट जो है वो फ्लावरिंग को अफेक्ट कर सकती है प्लांट में। सो इनडायरेक्टली वी कैन से रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट में। सो दैट्स व्हाई बी हैज टू बी द राइट आंसर ओवर हियर। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन में पूछा है, Which one of the following generally acts as antagonistic to gibberellin? gibberellin का antagonistic, उसका opposite function कौन करता है? zeatin, ethylene, ABA या फिर IAA? Again a direct question is in front of us and let's see किसको ये बातें बिल्कुल याद हैं। क्या बात है, बिल्कुल आज तो एकदम फॉर्म में है बच्चे, बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से एवरीवन इज आंसरिंग। एंड अगर बात चल रही है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट रिस्पॉन्स।
और बहुत ही कम टाइम में। सो वी ऑल नो कि अगर बात चल रही है जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक की, उसके अपोजिट फंक्शन करने वाले की, सो हम सभी को पता है कि जिब्रेलिन का अपोजिट फंक्शन कौन करता है? द फंक्शन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन इज परफॉर्म बाय ABA, दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड का काम होता है ये उसका अपोजिट काम करना। सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने सी आंसर किया है बहुत फास्ट, वेरी गुड। देन 2010 का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फिर से आपसे इस कर्वेचर की बात पूछ ली गई है, ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। सो आई होप कि अब तक तो सबको ये बात समझ में आ गई है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली दे आर टॉकिंग अबाउट योर ऑक्सिन। सेम बात देखा कैसे अलग अलग तरह से रिपीट कर देते हैं। सो ऑक्सिन हैज टू बी द राइट आंसर हियर। देन आफ्टर दैट, one of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is, tea plantation के लिए हम इसमें से कौन सा commonly used plant growth hormone यूज करते हैं? इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जेटिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। What should be the correct answer here? अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन की टी प्लांटेशन के अंदर, so what has to be the right answer? Let us see what all you have to tell. वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जितने भी एग्जाम्पल स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि ग्रेप्स वाला, शुगर कैन, पाइनएप्पल, टी प्लांटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज, क्या होता है? वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। एंड एज आई कैन सी मोस्टली यहाँ पर बच्चों ने डी आंसर ही सेंड किया है एंड डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर है हमारे सामने एंड दैट्स व्हाई वी विल मार्क डी एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। 2010 का क्वेश्चन हमारे सामने है कि रूट डेवलपमेंट कौन प्रमोट करता है? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर एथिलीन। अब अगर आपसे रूट डेवलपमेंट के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, सो विच वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एंड एज आई कैन सी, yes, definitely we all know that root development, again a direct question it was, और questions जितने भी हमने इस चैप्टर से सॉल्व किए हैं सारे के सारे अभी तक बिल्कुल डायरेक्ट questions ही पूछे गए हैं। and all of us know that root development कौन प्रमोट करता है? it is promoted by ethylene only, so D has to be the right answer over here. Then coming to the next question, अगला question है हमारे सामने, photoperiodism was first characterized in, पहली बार photoperiodism किस में characterize किया गया था? When we started photoperiodism, at that time also only we had studied this and as I can see बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल ये बातें याद हैं। Definitely true. Photoperiodism was first characterized in your tobacco. And A, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर बहुत जल्दी आंसर किया है, that is definitely true. So tobacco is correct answer here. So here we have actually gone through the questions of your plant growth and development from the year 2021 up to the year 2010 और यहाँ पर एक बहुत ही important chapter हमने complete कर दिया है plant physiology से। then human physiology we will be starting. before that you have to make sure कि अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी है उसको go through करें। doubts के लिए you can reach out to me if you have any doubts and you have to keep revising constantly. you have to go through the recorded lectures and then come here for PYQs. we will meet in the next class. Till then, you all have to stay tuned. Take care of yourselves and bye.